Hello dear students, my name is Swati Yadav from Noida Institute of Engineering and Technology. Today we will discuss about types of corrosion and their prevention. This topic includes from the unit 5th of Pharmaceutical Engineering. Earlier we have discussed about theory of corrosion, factors influencing material construction. So today we will discuss about the types of corrosion. बेसिकली कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को हम लोकल लैंग्वेज में जंग कह सकते हैं कि किसी भी आयरन मटेरियल, फेरस मटेरियल है जिसको हम इन्वायरमेंट में एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोजर होने के कारण उस पर कोटिंग हो जाती है जो कि मेटल को क्या करता है? कोरोड करता है. सो प्योर मेटल्स एंड देयर एलॉयज tend to enter into chemical union with the components of corrosive media to form stable compounds. Corrosion can be broadly classified as fluid corrosion in general, fluid corrosion in localized, fluid corrosion in structural and fluid corrosion in biological. So firstly we will discuss about fluid corrosion in general कि किस तरीके से generalized way में in general form में हमारे metals पे corrosion cause करता है. When corrosion is generally confined to a metal surface, it is known as general corrosion. And this type occurs in a uniform fashion over the entire exposure surface area at a wide range of temperature. Different temperatures पे जब हमारा कोई भी metal environment से expose होता है तो entirely जो हमारा metal है वो उस पे corrosion cause होता है. इसी को ही हम कहते हैं generalized corrosion. So generalized corrosion is basically divided into two types. Number one, physicochemical corrosion and number two, electrochemical corrosion. So firstly we will discuss about physicochemical corrosion. The effect of this type are swelling, creasing, cracking, softening, etc. Physicochemical corrosion के हमारे examples हैं plastics and non-metallic materials. Now electrochemical corrosion. This type of corrosion occurs at discrete point of metallic surface when electricity flows from cathodic area to anodic area. जब cathodic area से anodic area में हमारे metallic surface पे electricity flow करती है तो इस corrosion को we can say electrochemical corrosion. Metallic surface get divided into two portions. One side anodic and another side is cathodic portion. Whereas ये तो हमारा क्या हो गया? Fluid corrosion in generalized. नंबर 2 हमने पहले जैसे पढ़ा था क्लासिफिकेशन फ्लूइड कोरोजन जनरल, अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड कोरोजन लोकलाइज्ड. तो फ्लूइड कोरोजन कैसे एक लोकल एरिया में कॉज करता है. हमारा फ्लूइड कोरोजन इन लोकलाइज्ड आर फर्दर क्लासिफाइड इन मैनी टाइप्स. नंबर 1 स्पेसिफिक टाइप कोरोजन जिसमें हमारे कुछ पार्ट्स हैं इंटरग्रैनुलर कोरोजन, पिटिंग कोरोजन एंड क्रेविस कोरोजन. ये हमारे स्पेसिफिक साइट टाइप्स के कोरोजन्स हैं. इसी में ही हमारे फ्लूइड कोरोजन इन लोकलाइज्ड में हमारे स्ट्रेस इंड्यूस कोरोजन आते हैं. स्ट्रेस इंड्यूस कोरोजन हमारे एक स्ट्रेस इंड्यूस क्रैकिंग है, कोरोजन फटीग है एंड फ्रेटिंग कोरोजन है. इसी तरीके से थर्ड हमारा टाइप है फ्लूइड कोरोजन इन लोकलाइज्ड फॉर्म लिक्विड फ्लो रिलेटेड कोरोजन जिसमें हमारे फर्दर टाइप्स हैं कोरोजन के. नंबर 1 इरोजन, इम्पिंचमेंट अटैक एंड कैविटेशन इरोजन. फोर्थ हमारा टाइप है फ्लूइड कोरोजन इन लोकलाइज्ड में केमिकल रिएक्शन रिलेटेड कोरोजन जिसमें अलग अलग तरीके के कोरोजन होते हैं. नंबर 1 गैल्वेनिक कोरोजन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट. फ्लूइड कोरोजन इन लोकलाइज्ड किस तरीके से ये कोरोजन लोकलाइज्ड फॉर्म में होता है आइए हम पढ़ते हैं. Fluid corrosion is the most frequently observed on different location in a material. Material में बहुत अलग अलग locations पे ये frequently पाया जाता है जिसको हम further classify करके हम पढ़ सकते हैं specific site corrosion जो कि हमने in general way में पहले classify करा है. अब specific site corrosion क्या है उसको हम पढ़ते हैं. Mechanically weak spots or dead spots in a reaction vessel cause specific site कोरोजन. कुछ हमारे स्पॉट्स, डेड स्पॉट्स मैकेनिकली प्रेशर की वजह से क्रिएट हो जाते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक साइट कोरोजन विच कॉजेज ऑन मेटल्स. सो स्पेसिफिक साइट कोरोजन हमारा एक इंटरग्रैनुलर कोरोजन भी हो सकता है उसमें ही, दैट इज
selective corrosion that occurs in the grain boundaries in a metal and is called as intergranular corrosion. In this type, the grain boundaries contain material which shows electrode potential more anodic than that of grain center in the particular corroding medium. This may be due to the participation of certain compounds at the grain boundaries. We can see here a chemical reaction, say for example, austenitic stainless steel with nitric acid forms grain boundary precipitation. तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक साइट कोरोजन में हमारा इंटरग्रानुलर कोरोजन का रिएक्शन है. नाउ स्टेनलेस स्टील इज स्टेबलाइज्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ नियोबियम और टाइटोनियम और कार्बन लेस देन 0.03%. Pitting corrosion is a kind of specific site corrosion which comes in the fluid corrosion of localized types. So, pitting corrosion. This type of corrosion results in the development of pits and cavities. Pits और cavities develop हो जाती है. They having a range from deep cavity of small diameter to shallow depression. Now, इसका example है alloy of aluminium with aqueous solution of chloride forms कैविटी. हमारा एल्यूमिनियम का एलॉय अगर क्लोराइड के कांटेक्ट में आता है तो वो कैविटी या पिट का फॉर्मेशन करता है जिससे कोरोजन होता है और उस टाइप के कोरोजन को वी कैन से पिटिंग कोरोजन. पिटिंग ऑफ मेटल अकर्स व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर एंड इम्परफेक्शन ऑन द अंडरलाइनिंग मेटल. तो ये था हमारा पिटिंग कोरोजन. उसी तरीके से हमारा स्पेसिफिक साइट कोरोजन का दूसरा टाइप है दैट इज Crevice corrosion. Crevice corrosion occurs in crevices because solutions are retained at such places. कुछ places पे metal के हमारे solution retain कर जाता है और वो longer time तक उस metal के surface को dry नहीं होने देता है. जब हमारा surface dry out नहीं होगा तो it will cause crevices because of metal contact with another piece of the same or other metal. तो ये सारे हमारे स्पेसिफिक साइट कोरोजन थे जो कि फ्लूइड कोरोजन के लोकलाइज्ड फॉर्म के कोरोजन में आते हैं. इसी तरीके से हमारा सेकेंड टाइप है स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन. अब हम ये सारे जो कोरोजन है किस में पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक साइट कोरोजन में ही पढ़ रहे हैं. सो स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन, रेसिडुअल इंटरनल स्ट्रेस इन द मेटल और एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस एक्सेलरेट्स द कोरोजन. इंटरनल स्ट्रेस हमारा फॉर्म होता है किस पे, मेटल पे या किसी तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रेस उस पे अप्लाई करते हैं जिसके कारण मेटल में कोरोजन एक्सेलरेट होता है. सो रेसिडुअल इंटरनल स्ट्रेस इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स. नंबर 1, डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन. फैब्रिकेट करते हैं हम मेटल को, उसको हम दूसरे शेप में देते हैं मेटल को किसी तरीके से, तो वो क्या होता है, डिफॉर्म कर जाता है. इस वजह से कुछ टाइप का जो कोरोजन होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन. नंबर 2, अनइक्वल रेट ऑफ कूलिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर. अलग अलग रेट हम कूलिंग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्या करता है, फ्लक्चुएशन होने के कारण हमारे मेटल पे कोरोजन कॉज करते हैं. नंबर 3, इंटरनल स्ट्रेस rearrangement involving volume changes. ठीक है. So stress corrosion occurs along narrow paths forming anodic area with respect to the more cathodic area at the metal surface. अब हमारा जो स्ट्रेस कॉज हो रहा है इस टाइप ऑफ कोरोजन में, उसमें क्या हो रहा है, एक नैरो पाथ फॉर्मिंग हो रही है जिसमें एनोडिक एरिया इज मोर एज कंपेयर टू कैथोडिक एरिया एंड presence of stress produces strain. Strain produce होगा मेटल पे which will result in localized zone of higher electrode potential. These become so chemically active that these are attacked even by a mild corrosive environment. ये इतना ज़्यादा केमिकली एक्टिव हो जाते हैं कि ये किसी भी तरीके के हल्के फुल्के एनवायरनमेंट में भी कोई कोरोसिव मीडिया है तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत रिएक्ट करके हमारे मेटल को कोरोइड कर देते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग. हमने पहले पढ़ा स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन, अब उसी का ही टाइप है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग. एट द सरफेस
if the tensile stress is equal to or more than yield stress, the surface develop cracks. हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर इक्वल है या ज्यादा है एज कंपेयर टू यील्ड स्ट्रेस, तो जो हमारा मेटल का सरफेस है इट विल प्रोड्यूस क्रैकिंग एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग. कोरोजन फटीग. कोरोजन फटीग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोरोजन जो कि आता है किसमें, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन में. नाउ corrosion fatigue, it is the ability of metal surface to withstand repeated cycle of corrosion. ये corrosion fatigue क्या करता है, हमारे मेटल में कुछ एबिलिटी कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है ताकि कई बारी अगर corrosion हो जाए तो वो उसके सामने भी वो क्या करे, withstand कर सके, corrosion से फाइट कर सके. The metal surface is stressed and simultaneously attacked by corrosive media. The protective surface oxide film reduces corrosion. Under cyclic or repeated stress condition, rupture of protective oxide films take place a higher rate than that which new protective film can be formed. Therefore, the rate of corrosion is enhanced. Next is fretting corrosion. Fretting corrosion occurs when metal slides over each other and cause mechanical damage to one or both. Fretting corrosion metals में कब पाया जाता है, जब मेटल एक दूसरे से स्लाइड हो, कनेक्ट हो एक दूसरे से और उसमें क्या होता है, मैकेनिकल डैमेज हो जाता है एक दूसरे के वियरिंग एंड टियरिंग होने के कारण. ड्यूरिंग रिलेटिव मूवमेंट ऑफ मेटल टू प्रोसेसेस में अकर. दो प्रोसेस होते हैं अगर दो मेटल एक साथ हमारे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं. नंबर 1, फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड. अब दो मेटल हमारे एक दूसरे से अगर उनके बीच मूवमेंट है, ठीक है, तो वियरिंग एंड टियरिंग भी होती है, फ्रिक्शन कॉज होता है. फ्रिक्शन होने के कारण हमारे मेटल से हीट प्रोड्यूस होती है विच ऑक्सीडाइजेस द मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड फिल्म. फिर क्या करते हैं, हमारे मेटल ऑक्सीडाइज होके ऑक्साइड फिल्म्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं, इजंट इट. तो उससे कोरोजन कॉज होता है. रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ फ्रेश surface to corrosion attack. This can be avoided by using harder materials, minimizing friction by lubrication or by proper designing of the equipment. अगर proper designing हो equipment की, है ना, और harder material को हम avoid करें यूज करने से, minimize करें friction को, तो इस तरीके का corrosion से हम बच सकते हैं so that no relative movement of part will be take place. अगर मूवमेंट नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा, वियरिंग एंड टियरिंग मेटल्स की नहीं होगी. नेक्स्ट इज फ्लो रिलेटेड कोरोजन. लिक्विड मेटल कैन कॉज कोरोजन. लिक्विड मेटल हमारे क्या करते हैं, इट विल, बट ऑब्वियस सी बात है, इट विल कॉज कोरोजन. यूजुअली द ड्राइविंग फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू डिसॉल्व सॉलिड्स और पेनिट्रेटिंग द मेटल along the grain boundaries at place of wetting. जहाँ पे भी वेटिंग होगी वहाँ पे हमारे लिक्विड क्या करेंगे, डिसॉल्व होके पेनिट्रेट करेंगे. सॉलिड्स को क्या करते, एक डिसॉल्व होने के बाद दे विल गेट पेनिट्रेटेड, पेनिट्रेट करेंगे along with the grain boundaries at the place of wetting. So corrosion rate is enhanced at high temperature. For example, mercury attack on alloy. मरकरी क्या करता है, अटैक करता है एलॉय पे. अब हमारे फ्लो रिलेटेड कोरोजन का ही टाइप है इम्पिंजमेंट कोरोजन. दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एरोजन कोरोजन और वेलोसिटी एक्सेलरेटेड कोरोजन. हमारा इम्पिंजमेंट कोरोजन, एरोजन कोरोजन और वेलोसिटी एक्सेलरेटेड कोरोजन भी कहा जाता है. इट इज एक्सेलरेटेड बाय रिमूवल ऑफ कोरोसिव प्रोडक्ट which would otherwise tend to stifle the corrosion. Next is cavitation corrosion, erosion. It is observed around propellers, rudders, in pumps, etc. जो हमारे propellers होते हैं उनमें ये पाया जाता है बेसिकली कौन, cavitation erosion. Redesign, use of a more resistant metal and protective coatings are required to avoid this corrosion. इस type of corrosion से हम कैसे बच सकते हैं, when we can redesign the metals
और हम अगर मोर रेसिस्टेंट मेटल यूज करें और उस पर कोटिंग करें तो। Chemical reaction related corrosion. Corrosion involves chemical reactions such as oxidation and reduction at anode and cathode part. पहले भी हमने आपको बताया कि हमारे मेटल पे एनोड और कैथोड पार्ट होते हैं, पोर्शंस होते हैं, जिसमें हमारे गैल्वेनिक कोरोजन क्रिएट होते हैं. इट इज एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट टू अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम अ मोर एक्टिव मेटल, that is zinc anode in the same environment. हमारे क्या है, it is associated flow of current हमारे एक less active metal से दूसरे portion में जो कि more active metal होगा like zinc anode है उसी environment में, तो वो होता है हमारा galvanic corrosion. Coupling of two metal which are widely separated in the electrochemical series produces an accelerated attack on the more active metal, that is zinc. Therefore, combination of metals which are as close as possible in the electrochemical series should be chosen. तो ये हमारे थे fluid corrosion in localized form. Now we will study about the third type fluid corrosion, that is fluid corrosion is structural. In structural type, the mechanical stress is reduced on account of corrosion. This may occurs when one component of the alloy is removed or released into solution. The corrosion product may remain in plant, say for example graphite corrosion and designification corrosion. Fluid corrosion is the fourth type of fluid corrosion that is biologically occurring. The metallic action of microorganism can either directly or indirectly cause deterioration of metal, deteriorate करता है metal को. Say for example, Sporovibrio desulfuricus is responsible for anaerobic corrosion of iron and steel. Selection. अब now we will study about the prevention of corrosion. किस तरीके से हम अपने metal को corrode होने से बचा सकते हैं. Number 1, selection of proper material. Select the appropriate metal or alloy. Natural matter corrosive combinations like SS nitric acid, Ni alloy, caustic, Monal HF, Hessel alloy, hot HCl, Pb dilute sulfuric acid, Sn distilled water, aluminium atmosphere, titanium hot oxidizer and titanium ultimate resistance. Proper designing of equipment करके भी हम prevention से बचा सकते हैं. Avoid sharp corners, complete draining of vessels. शार्प कॉर्नर हम अवॉइड करें, शार्प कॉर्नर नहीं है तो हमारे क्या होगा, वहाँ पे कहीं पे भी हमारे मटेरियल्स जाके स्टिक नहीं होंगे तो हमारा मेटल सरफेस कोरोड नहीं होगा. कंप्लीट ड्रेनिंग करें वेसल्स के, वेसल्स को ड्राई रखें, नो वाटर रिटेंशन, अवॉइड सडन चेंजेस इन सेक्शन, अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन डिसिमिलर मेटल्स. कोटिंग एंड लाइनिंग से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को. मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कोरोजन प्रोटेक्शन. Coatings are of various types, metallic, inorganic like glass, porcelain and concrete, organic paints, varnishes and lacquers. तो कोटिंग अलग अलग तरीके की होती हैं जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन को. नेक्स्ट इज अल्टरिंग इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को अल्टर करके भी हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं. लोअर टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजर, चेंज कॉन्सेंट्रेशन एंड एड इनहिबिटर्स, एड्सॉर्प्शन टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल एजोल्स, ऑक्सीडाइजर ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल क्रोमेट्स, नाइट्रेट्स, फेरिक सॉल्ट्स. तो ये हमारे प्रिवेंशन थे. प्रिवेंशन में हमने क्या क्या पढ़ा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, कोटिंग एंड लाइनिंग, अल्टरिंग इन्वायरमेंट्स, कैथोडिक. अब हम पढ़ेंगे अल्टरिंग इन्वायरमेंट्स पढ़ लिया. नाउ वी विल स्टडी कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड एनोडिक प्रोटेक्शन. Make the structure more cathodic by use of sacrificial anode. Cathodic area ज़्यादा cover करे. Impressed currents used extensively to protect marine structure, underground pipelines, water heaters and reinforcement bars in concrete.
ये हमारे क्या थे, एथोडिक में, कि हमें मराइन स्ट्रक्चर्स के लिए ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से। अंडरग्राउंड पाइपलाइन पे भी हमें हमेशा उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कहीं वो कोरोड तो नहीं हो रहे हैं। वाटर हीटर्स पे भी ध्यान देना होता है, एंड रेनफोर्समेंट बार्स इन कंक्रीट में जो हमारे बार्स यूज हुए होते हैं उन पे भी हमें ज़्यादा नोटिस करना होता है। तो ये थे हमारे कैथोडिक प्रोटेक्शन। नाउ एनोडिक प्रोटेक्शन। मेक passivative metal structures more anodic by impressed potential, say for example 316 stainless steel pipe in sulfuric acid plants. सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स में हमें मेटल सरफेस मोर एनोडिक रखना होगा बाय इम्प्रेस्ड पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल जो हमारी पाइप्स होंगी वो 316 स्टेनलेस स्टील की पाइप्स होंगी। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने टाइप्स ऑफ कोरोजन में डिफरेंट टाइप्स पढ़े कोरोजन के। बेसिकली कोरोजन हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि हमने जो 4 यूनिट फार्मास्यूटिकल उसमें इंजीनियरिंग में पढ़ी है, जिसमें हमें मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें हमने डिफरेंट इक्विपमेंट्स मशीन्स बनाई हैं जिसमें हम मेटल्स, अलग अलग मेटल्स यूज करते हैं जिनको हमें कोरोजन से बचाना होता है। कोरोजन से बचाने के लिए हमें थियरी ऑफ कोरोजन पता होना चाहिए एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन पता होना चाहिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सेलेक्ट करने के लिए मटेरियल की, किस टाइप का मटेरियल यूज करके हम मेटल्स को डिजाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें जो कि कोरोजन से हमें बचाए। तो हमने कोरोजन में हमने पढ़ लिया फ्लूइड कोरोजन, जनरल फ्लूइड कोरोजन, लोकलाइज्ड फ्लूइड कोरोजन, स्ट्रक्चरल फ्लूइड कोरोजन, बायोलॉजिकल। एंड फ्लूइड कोरोजन में हमने पढ़ लिया फिजिकोकेमिकल कोरोजन। फ्लूइड कोरोजन किसमें? जनरलाइज में। फिजिकोकेमिकल कोरोजन पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़ा। अब हम आगे रिवीजन करते हैं फ्लूइड कोरोजन लोकलाइज्ड की। फ्लूइड कोरोजन लोकलाइज्ड में बहुत सारे सब टाइप्स हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक साइट कोरोजन, एंड नंबर 2 स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन, एंड नंबर 3 लिक्विड फ्लो रिलेटेड कोरोजन, एंड केमिकली रिएक्शन रिलेटेड कोरोजन। फ्लूइड कोरोजन लोकलाइज्ड में स्पेसिफिक साइट में इंटरग्रैनुलर कोरोजन है, पिटिंग कोरोजन, स्रेविस कोरोजन, और स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन में ही हमारे स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग है, कोरोजन फटीग है, फ्रेटिंग कोरोजन। फ्लो रिलेटेड कोरोजन में हमारे इम्प्रिंजमेंट अकरेंस, कैविटेशन इरोजन, केमिकल रिएक्शन रिलेटेड कोरोजन जिसमें गैल्वेनिक कोरोजन। ठीक है। अब फ्लूइड कोरोजन स्ट्रक्चरल होता है हमारा, जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिड्यूस करके हम कोरोजन पे ओवरकम कर सकते हैं। फ्लूइड कोरोजन बायोलॉजिकल, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन विच क्रिएट इन आयरन एंड स्टील। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसमें हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, फेरस नॉन फेरस होते हैं, जिनको हमें कोरोजन से प्रिवेंट करना होता है क्योंकि बहुत दिनों तक कई बार हमारे कंटेनर में मटेरियल स्टोर रहते हैं जिससे कोरोजन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन कॉज हो सकता है। तो हमें ये प्रिवेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। तो जिसमें हम आइए आउटलाइन पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, कोटिंग एंड लाइनिंग्स, अल्टरिंग एनवायरनमेंट, कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड एनोडिक प्रोटेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल सबसे पहले हमें सेलेक्ट करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मटेरियल कैसा चूज कर रहे हैं जिसको हम क्या करें, मेटल्स को कोरोजन होने से बचा सके। तो हमारा अप्रोप्रिएट मेटल हम यूज करेंगे, लाइक एलॉय या मेटल यूज करते हैं, नेचुरल मेटल कोरोसिव कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं डिफरेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और जो भी हम मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए इक्विपमेंट की, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। शार्प कॉर्नर्स ना हो हम डिजाइन अगर कर रहे हैं इक्विपमेंट को। अगर शार्प कॉर्नर्स होते हैं बेटे, तो शार्प कॉर्नर होने की वजह से हमारे जो मटेरियल्स हैं, पाउडर्स हैं, जो स्टिकी मटेरियल्स हैं, वो जाके स्टिक हो जाते हैं। तो उनको वॉशिंग और क्लीनिंग करने के टाइम पे वो स्टिक रह जाते हैं, वो वॉश आउट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन हो सकता है। एंड कंप्लीट ड्रेनिंग ऑफ वेसल्स, जो भी हमारा कंटेनर है जो कि मेटल से बना हुआ है, एलॉय से बना हुआ है, उनको हमें कंप्लीटली ड्रेन आउट करना होता है ताकि वो कुछ समय बाद ड्राई हो जाए और उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। अवॉइड सडन चेंजेस इन सेक्शन, अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन डिसिमिलर
दो अलग अलग मेटल्स हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, अगर कांटेक्ट में आते हैं, अगर उनके बीच मूवमेंट हो रहा है तो वियरिंग एंड टियरिंग के साथ साथ कोरोजन भी हो सकता है, एज वेल एज हीट जनरेट हो सकती है। तो कोटिंग और लाइनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमें कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए मेटल को। सो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कोरोजन प्रोटेक्शन इज कोटिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, लाइक मेटालिक, इनऑर्गेनिक लाइक ग्लास, पोर्सलेन और कंक्रीट। ऑर्गेनिक्स में हमारे हैं पेंट, वार्निशेस एंड लेकर्स। इन्वायरमेंट को अल्टर करके भी हम कोरोजन को बचा सकते हैं, लाइक लोअर द टेम्परेचर, वेलोसिटी, remove the oxygen, oxidizers, add different inhibitors like adsorption, oxidizers हम use करते हैं, chromates, cathodic protection, anodic protection, and thank you so much.